Hello, students. Good evening. Today, we are going to discuss two important topics of English grammar, that is, voice and narration. Many a times, students get confused with voice and narration, and not only writing but for spoken, both the topics are very important. So first of all, you have to have clear idea about voice and narration in English grammar. What is voice and what is narration, and how they are different from each other, and where to use voice and narration. So before proceeding, let me tell you that voice means that is only for understanding, or for you can remember this way. That's why I'm telling you that the difference between voice and narration is that voice means whose voice, speaker's voice, or sometime weightage is given to work or the person's voice. This way you can remember. And narration means narrate something, to speak something, right? So this way you should understand that a voice is a different chapter from narration. Voice is used for formal language, formal and informal both, but then when we use formal language, we use passive voice, otherwise active voice, right? So that is used for notice, circular, right? Because passive voice I'm talking about. So that is used for instructions, for notice, for circular, for commentary, right? This way we use voice, active voice and passive voice, because sometime we give importance to person or a doer, or sometime work is important, person is not so much important, right? So that is something to do with voice. As far as narration is concerned, that is speaking something. To narrate something means you just imagine two persons, two parties, or two situations. So when reporting is the good example. We have two media, print media and electronic media, two types of media mainly. So in print media, reporters bring news and then it is published, right? Similarly, in e-media or electronic media, n number of channels are there, and we used to see that they narrate the story. So you must have noticed that future cannot be narrated, that can be assumed, but narration can be done for any incident, accident, or event. So when we narrate something means we are talking about the past. It may be recent past, it may be 1 hour before, it may be 1 year before, it may be 10 years, it may be 5,000, right? But then it is something about past. Generally it happens, right? Future also we speak, but then that is narration. Presentation also, but then present and future also we use in narration, but mostly we use past tense. How we will discuss, right? So I'm repeating again the difference between voice and narration. Voice is used for formal and informal language. Formal language, for a while you can keep in your mind.
When it is said that when we cross the threshold of our home, we are in formal situation, so we should use passive voice or formal sentences. So that is something to do with formal and informal. Whereas narration is used for narrating, and in narration, important point is that sometime you narrate according to your choice of words and all, your style, you are talking the same, but then when you repeat a speaker's words, or when you uh, narrate the situation, so sometime you use your words and sometime you speak speaker's words as it is. When you use speaker's words as it is, that is called direct narration, and when you change his or her words into your language is known as, that is called indirect narration, right? So these are the two. So let us see here. That's a what we can say, title of this slide is English sentences and communication. Why? Because voice and narration play a very important role in communication. So, and these two types of sentences are very important in our writing part, right? So let us see what is I am going to explain here, that is voice and narration, right? So here I have done the subboard work. You can see here, that's a voice and narration, right? Direct, sorry, active and passive voice, active and passive voice, right? Passive voice, and direct and indirect, this is narration and this is voice. The difference here, very important, is that is this is the structure subject, verb and object, and this is the structure of passive voice. And what is important, you have to remember helping verbs, and these 8 helping verbs you have to remember, right? These are the rules. Apart from this, we have to take care of personal pronoun, right? So what is personal pronoun? I am going to discuss subjective, objective, possessive and self personal pronoun. Come to direct, indirect. Here I told you speaker's words as it is direct, and change into your words are called indirect narration. And what is important here? Here important is conjunction, tense and pronoun, which are very important. We are going to do the discuss the same, right? So let us see. See, first of all, let me tell you the different. I'm taking voice, right? So for voice, right from school days, you have learned that's a voice. What is voice? So voice is active voice and passive voice, right? Active voice, subject plus verb plus object. This is the structure of active voice or active voice sentences. Whereas passive voice, the structure is different. That is, first we have to change the situation, object and subject. These are the changes, right? Object becomes subject and subject becomes object. Then in between, what is going to be inserted? Very important, it's a helping verb. Then third form of main verb, then by, and then subject. So here I am going to speak the same. See, first hai, that is subject plus verb plus object, right? Any example we can take.
राइट। देखो, सबसे पहले याद रखना कि आपको कभी भी वॉइस पढ़ो तो सेंटेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। और बल्कि टेंस का नॉलेज होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? आपने पढ़े हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज। अब मैं पूछ नहीं सकती, दिस क्लास कैन नॉट बी इंटरेक्टिव, है ना। इट्स अ वन वे बिकॉज आई एम मेकिंग वीडियो, बट येस आई एम टेलिंग यू दैट do you have any idea about tenses? So let me recall before proceeding. Let me recall tenses in short, that you can remember tenses this way, that tenses means this is a timeline, right? This is the present tense, है ना, present tense. This is past, and this is future, है ना। अब पास्ट टेंस मीन्स बैक 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 बैक, प्रेजेंट टेंस मीन्स सॉरी फ्यूचर टेंस मीन्स मूव मूव मूव, एंड दिस इज प्रेजेंट, राइट। सो पास्ट टेंस में क्या होगा? रीसेंट पास्ट, उससे पहले वाला और पुराना पास्ट और पुराना पास्ट। फ्यूचर में भी सिमिलर, है ना, अभी के फ्यूचर, नियर फ्यूचर की बात है या जैसा भी। तो ये है टेंस। अब इसमें आपने, ये तो इसके डिफरेंट स्टेजेस हो गई, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंसेस कैसे होते हैं। सिंपल, है ना। तो सिंपल में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, है ना। ये तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन सिंपल फ्यूचर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता। सिंपल फ्यूचर क्या होता है? विल और शेल, और इसके साथ आपको यूज़ करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेगा। तो व्हेन डू वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? वर्ब का थर्ड फॉर्म कब यूज़ करते हैं? तो वो याद रखो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा कहाँ कहाँ यूज़ होता है ग्रामर में। जनरली मैं अभी आपको बता देती हूँ। एक तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है पैसिव वॉइस में। कहाँ पे? देखो, इसको ऐसे नहीं याद रखो, उसको ऐसे याद रखो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? पहले तो ये थोड़ा सा समझ लो कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जैसे प्ले, है ना, प्लेड और प्लेड, है ना। फिर ईट, एट और ईटन, है ना। तो ये वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हैं, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ये तो आपको रिकॉल करने के लिए मैंने समझाया। पर आपने देखा कि कुछ केसेस में तो सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, लेकिन ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं थर्ड फॉर्म? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? पैसिव में, पहला तो पैसिव वॉइस में, ऐसे याद रखो इसको, पैसिव वॉइस में। सेकेंड, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जिस भी सेंटेंस में बी आता है तो वो किसको फॉलो करता है? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को, है ना। और तीसरा ये याद रखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं एक्चुअली अभी बताने वाली थी, वो है हैज़, हैव और हैड। इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता ही है ना। तो ये माइंडसेट आपका रहना चाहिए, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब हम आते हैं, मैं बता रही थी आपको, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। अब दूसरा टाइप का सेंटेंस होता है जिसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस, है ना। कंटिन्यूअस में भी सिंपल, है ना। कंटिन्यूअस तो इसको हम कहते हैं, सॉरी कंटिन्यूअस, है ना। ये है कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस,
और फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, ये तो कंटिन्यूस हो गया, है ना। दूसरे टाइप का, तीसरे टाइप का क्या होता है, दैट इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, है ना। परफेक्ट में भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, है ना, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब लास्ट है और वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट भी है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब इसमें किसी भी सेंटेंस में हैज़ या तो सिंगुलर, हैव, है ना, या हैड, ये तो आएगा ही। और कंटिन्यूस मतलब मेन वर्ब का, अरे सॉरी नॉट थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ये आएगा ही आएगा। जैसे सिंगिंग, है ना, जैसे डांसिंग, है ना, सॉरी सिंगिंग, ठीक है, डांसिंग, लाइंग, ये सारे, सिटिंग, ये ऐसा सेंटेंस है ना। कहाँ यूज़ होता है अभी ऐसे, उसमें इतना अभी मैं टेंस नहीं पढ़ा रही, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रही थी कि टेंसेस क्या होते हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस के पैसिव भी बनते हैं, है ना, जिसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसका नहीं बनता, उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस को। पहला, दूसरा कंटिन्यूस सेंटेंसेस में जिसमें आईएनजी है, प्रोसेस में कोई काम हो रहा है तो उसका पैसिवाइजेशन कैसे होता है। और तीसरा हम देखेंगे परफेक्ट टेंसेस में, सेंटेंसेस में परफेक्ट मतलब हैज़, हैव और हैड, इनका पैसिवाइजेशन कैसे होता है, ये हम अभी देखने वाले हैं। पर इसके पहले आप एक बार डिफरेंस समझ लो एक्टिव और पैसिव वॉइस में। देखो, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। ये कह रहे हैं कि फीचर क्या है, फीचर है इसके एम्फेसिस, क्लैरिटी और यूज़। पहला है एम्फेसिस, है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या क्या होता है। एक्टिव वॉइस में एक्शन एंड डूअर को इम्पोर्टेंस दी जाती है ना। और पैसिव वॉइस में एक्शन होता है और रिसीवर होता है। कब, जब हम किसी चीज़ को एम्फेसिस, प्रेशर देते हैं तो, है ना। फिर क्लैरिटी क्या है, ये मोर कंसाइज एंड डायरेक्ट होते हैं, है ना। जैसे यूजीसी हैज़ रिलीज इट्स नॉर्म्स, तो ये इसमें क्लैरिटी है। पैसिव वॉइस लेस डायरेक्ट एंड कैन बी लेस क्लियर। पैसिव वॉइस में थोड़ा आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, एकदम से समझ में नहीं आता पैसिव वॉइस। तो वो कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस थोड़ा सा कम डायरेक्ट होता है और थोड़ा कम क्लियर होता है, क्लैरिटी इसमें कम होती है ना। फिर यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ होता है एक्टिव वॉइस, ऑफन यूज व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। हमने कहा कि ये स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी ने दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ने दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ने दिया है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा, तो वहाँ पर्सन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसका वर्जन है, मैंने कहा डायरेक्टर सर टोल्ड मी टू सबमिट योर एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। तो डायरेक्टर स्पोक और प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और फैकल्टी, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पर्सन इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक्टिव वॉइस में पर्सन इम्पॉर्टेंट है, डूअर इम्पॉर्टेंट है। वेयर एज पैसिव वॉइस ऑफन यूज व्हेन द एक्शन इटसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट और व्हेन द डूअर इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट। कभी कभी एक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पर्सन से, कहते भाई काम हुआ कि नहीं, किसने किया, छोड़ो, काम हुआ या नहीं हुआ, तो अपन कहते हैं यस वर्क इज़ डन। अब वर्क इज़ डन बाय मिस्टर मोहन शर्मा, राम नाम आए, एनीबडी कैन बी, बट द पर्सन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कभी कभी पर्सन की बहुत इम्पोर्टेंस नहीं होती, या
पर्सन पता ही नहीं है कौन है, हाँ काम हो गया, तब भी हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस है, रिपीट कर रही हूँ। एक्टिव वॉइस में क्या है, एम्फेसिस हम किसको देते हैं, एक्शन को और डूअर को। वेयर एज पैसिव वॉइस हम एक्शन को तो देते ही हैं, पर रिसीवर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। रिसीवर कौन है अभी देखेंगे, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। क्लैरिटी, एज फार एज क्लैरिटी इज कंसर्न, एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस मोर कंसाइज एंड डायरेक्ट। तो क्लैरिटी आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में ज़्यादा समझ में आती है, पैसिव वॉइस में कम आती है। यूज़ कहाँ होता है, तो एक्टिव वॉइस का यूज़ होता है जहाँ पे हमें एक्शन डूअर जो है, जो काम करने वाला डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। काम करने वाला डूअर ऑफ द एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन, तो हम करते हैं। और इसमें कहाँ पर यूज़ होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट होता है जबकि ये जो है पर्सन वो अननोन होता है या उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, तो हम एक्शन इटसेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट और व्हेन डूअर इज़ अननोन और अनइम्पॉर्टेंट। डूअर का काम किसने किया उससे ज़्यादा बहुत मतलब नहीं, ये डिफरेंस है। सही आया समझ में? अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको टेंस रिवाइज किया कि अगर हम लेते हैं सिंपल सेंटेंस, आई राइट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, आई सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट है। अगर यही सेंटेंस होता राइट की जगह यहाँ रोट होता, रोट होता, तो ये क्या हो जाता, सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है ना। अगर यहाँ पे इसकी जगह मान लो होता ये इसकी जगह होता अगर विल राइट, ठीक है, तो इसकी जगह मान लो यहाँ पर होता विल राइट, तो ये क्या हो जाता, सिंपल, ये हो जाता सिंपल फ्यूचर हो जाता है, ये सिंपल फ्यूचर हो जाता, क्या हो जाता है, ये सिंपल फ्यूचर। ऐसे याद रखो, ऐसे चेंज हो जाता है ना, ठीक है। तो अब अगर ये मैंने लिखा एग्जाम्पल, आई राइट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, तो पहले सबसे पहले वॉइस चेंज करने के लिए क्या करोगे, ऐसे अंडरलाइन कर लो या होमवर्क इस तरह से रफ कॉपी में कर सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, रूल्स पहले याद रख लो। रूल्स क्या है कि सब्जेक्ट 5 फिंगर टिप्स दे रही हूँ जो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, और वो क्या है, दीज आर द फर्स्ट, है ना। ये एक्टिव से पैसिव बनाने के पहला वाला क्या है, पहला है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, इट बिकम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो उनको इंटरचेंज करना है। नंबर 2 और 3 तो याद ही करना है, वो तो सब में एप्लीकेबल है। वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपको याद करना है। कितनी हेल्पिंग वर्ब, 8 हेल्पिंग वर्ब्स है, कौन सी अभी बता देती हूँ। तो एक हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ऐड होती है। तीसरा क्या है, मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लेना ही लेना है पैसिव वॉइस में। ये जो 2 रूल्स हैं, दीज आर द 2 रूल्स विच यू हैव टू मग अप विदाउट फेल, यू हैव टू रिमेंबर। ये चेंज नहीं आएंगे तो कभी पैसिवाइजेशन होगा ही नहीं। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 रूल्स। हाँ, पहला वाला मे और मे नॉट भी कभी होता है कभी नहीं, तो ये 3 रूल्स तो ये हो गए। अब चौथा रूल है कि बाय लगाना है, कभी लगता है कभी नहीं लगता। और 5वां रूल भी, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो फिर आपको प्रोनाउन चेंज करना है। अगर सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे बाद में आई का हो जाता है मी, है ना, यू तो कभी चेंज ही नहीं होता। अगर सब्जेक्ट वी है तो इसको बाद में हम चेंज करके अस कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट ही है तो वो हो जाएगा हिम, अगर सब्जेक्ट शी है तो वो हो जाएगा हर। ये आपको याद करना है, ठीक है।
अब देखिए मैंने लिखा आई राइट आर्टिकल, तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, आई राइट आर्टिकल्स फॉर कॉलेज मैगजीन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, पर आर्टिकल्स फॉर, चलो लिख देती हूँ, फॉर कॉलेज मैगजीन, मैगजीन है ना, मैगजीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आर्टिकल्स। कॉलेज मैगजीन वो क्या लिखा है आगे वो कॉपी हो जाता है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। तो आपने लिखा यहाँ आर्टिकल्स, है ना। अब दूसरा रूल अभी हमने क्या देखा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को प्लेस चेंज कर दो, तो हमने आर्टिकल लिखा और आई का भी मैंने क्या बताया, मी हो जाएगा। ये दो, पहला चेंज तो हमने कर दिया। दूसरा रूल है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है उसमें, यू हैव टू इंसर्ट हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स, प्लूरल है आर्टिकल्स, और राइट प्रेजेंट है तो आर, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, राइट का क्या हो जाएगा, रिटन बाय, और ये मी, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया, ये ऐसे करते हैं, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस, है ना। अब दूसरा, अगर आपने कहा आई रोट आर्टिकल्स, आई रोट आर्टिकल्स, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स। अब रोट पास्ट टेंस हो गया, तो आर का क्या हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल्स प्लूरल है ना, वर, ऐसा वर रिटन, थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा, बाय, और आय का मी, ये जो आय है ये मी। पहले एक बात और बता दूं कि मैंने लिखा है, देखो बोर्ड में, आपको रिकॉल करवा दूं, मैंने बोर्ड में लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, मैं इसको लिख के भी समझा देती हूँ। कौन से हेल्पिंग वर्ब, इनको बी फॉर्म कहते हैं, है ना। बी मतलब बाकी और भी बी है, पर आपको क्या याद करना है, आपको इसमें बी फॉर्म में याद करना है, इज, एम, आर। इसको एक साथ क्यों याद करोगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स हो गई, फिर वॉज और वर, है ना। और फिर यहाँ पे ये जो तीन वर्ब्स है, ये है बी इटसेल्फ, बी, बीइंग और बीन, है ना। ऐसे इसको अच्छे से पूरा पैसिव वॉइस, अगर आपको ये याद हो गई, लेट भी आता है इसमें, लेकिन अभी हम लेट बाद में देखेंगे। लेट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्ब भी यूज़ होती है, ये बाद में देखेंगे, दूसरे स्टेप उसमें दूसरे वीडियो में देखेंगे, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। अब देखो, इज़ तो आपको पता है, इज़ किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए और प्रेजेंट टेंस के लिए, है ना, प्रेजेंट टेंस के लिए। फिर आर किसके लिए यूज़ होता है, तो प्लूरल के लिए और प्रेजेंट टेंस के लिए, है ना। फिर एम किसके लिए यूज़ होता है, तो आई के लिए, सिर्फ आई के लिए यूज़ होता है ना, इज़ एम आर, है ना। फिर वॉज किसके लिए यूज़ होता है, तो वॉज यूज़ होता है सिंगुलर के लिए और पास्ट टेंस के लिए, है ना। फिर वर किसके लिए यूज़ होता है, तो प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए और पास्ट टेंस के लिए। तो इज़ एम आर क्या है, इज़ एम आर, ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है ना। और वॉज और वर क्या है, वर ये पास्ट टेंस है ना, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है। फिर बी, बीइंग और बीन, है ना। तो अब बी क्या है, तो बी कहाँ यूज़ होता है, तो बी यूज़ होता है पैसिव वॉइस में विल, शैल, और इसके अलावा मॉडल के सेंटेंसेस जब होते हैं उसमें बी यूज़ होता है ना। फिर बीइंग कहाँ यूज़ होता है, तो बीइंग यूज़ होता है, देखो इसमें याद रखना आईएनजी सेंटेंस है, तो जब किसी सेंटेंस में आईएनजी वाले, मतलब कौन से सेंटेंसेस, कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस में बीइंग यूज़ होगा, याद रखना, है ना। और फिर बीन कहाँ यूज़ होता है, बीन सिर्फ तीन हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस में हैज़ है मतलब ये सिंगुलर, हैव है ये प्लूरल, या इन दोनों का पास्ट टेंस है हैड, है ना, तो क्या यूज़ होता है, बीन यूज़ होता है। अब देख लेते हैं एक दो सेंटेंसेस। देखो एक मिनट, ये बता दिया मैंने आपको। अब एग्जाम्पल है,
द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द एग्जाम। जैसे ही आपने देखा कि सेंटेंस में राइटिंग आ रहा है तो ये आईएनजी है, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आ जाना चाहिए कि इस सेंटेंस में तो बीइंग लगेगा ही। तो अब कैसे हो जाएगा, हमने अभी रूल्स देखे थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट और अरे यार क्या है, एक मिनट, हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, दो वर्ब है इसमें, हेल्पिंग वर्ब भी है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। और एग्ज़ाम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब रूल क्या है, पहला रूल है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना। तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया और सब्जेक्ट इधर चला गया, है ना। तो सबसे पहला रूल तो ये चेंज कर दिया। दूसरा मैंने कहा आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो द एग्ज़ाम ये इधर आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब इज़, तो एग्ज़ाम सिंगुलर है इसलिए आपने इज़ लगाया, लेकिन एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, क्योंकि राइटिंग लिखा ना यहाँ बीइंग। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये रिटन, फिर बाय लगा दिया और ये तो चेंज हो गया। तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने कहा कि शी हैज़ released the book, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो आपने देखा इसमें कि यहाँ पे शी क्या है, शी सब्जेक्ट है, हैज़ रिलीज क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, मतलब ये वर्ब है। और द बुक क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। पहला रूल है द बुक। अब हमने लिखा द बुक, हैज़ है तो क्या आ जाएगा, बीन, द बुक हैज़ बीन, है ना, द बुक हैज़ बीन रिलीज्ड, थर्ड फॉर्म, वो रिलीज हैज़ के कारण ऑलरेडी रिलीज दिया है, रिलीज्ड बाय, और शी का क्या हो जाएगा, हर, ऐसा हो जाता है। एक आधी और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला समवन हैज़, समवन है ना, समवन हैज़ स्टोलन माय पेन ड्राइव। अब इसका कैसे बनाओगे, तो इसमें आपने ऐसे बनाओगे इसका, माय पेन ड्राइव हैज़ बीन स्टोलन। हमने समवन क्यों नहीं लगाया बाय समवन, देखो अभी हमने एक रूल देखा था कि अगर अनइम्पॉर्टेंट पर्सन या अननोन है तो उसको याद रखना कि उसको हम ड्रॉप ही कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको हम लिखते ही नहीं हैं, है ना, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती, तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। कैसे कि हमने कहा कि माई पेन ड्राइव, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन ड्राइव, तो ये तो एक्टिव वॉइस था, लेकिन पैसिव में माई पेन ड्राइव हैज़ बीन स्टोलन, ख़त्म। क्योंकि नहीं पता कौन है वो समवन, तो जब अननोन होता है तो उसको हम ड्रॉप कर देते। ये रूल, बहुत सारे और रूल हैं और तरह के सेंटेंस हैं, मैं यहाँ पूरे बता नहीं सकती, तो मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ, है ना। एक आधी सेंटेंस हम, मैंने लेट बताया आपको कि लेट भी यूज़ होता है, तो एक आधी हम सेंटेंस कैसे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं एक सेंटेंस, मान लो पहले तो एक मॉडल वाला सेंटेंस भी देख लो। मैंने बोला दे शुड कम ऑन, दे शुड नहीं, इसका एक्चुअली मैं क्यों नहीं बना रही हूँ, फिर कंफ्यूज हो गए। इसमें आपको दे शुड मेन वर्ब कुछ लेना पड़ेगा, दे शुड परफॉर्म
इन द इवेंट। इसका कैसे बनेगा देखो, अब हमें सिर्फ इन 3 चीज़ों से, किसी भी सेंटेंस में याद रखना, हमें सिर्फ 3 चीज़ों से मतलब है, सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। बाकी क्या लिखा है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो हम परफॉर्म से सेंटेंस को बनाएंगे, है ना। दे शुड परफॉर्म, इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ मैं। दे शुड गिव देयर परफॉर्मेंस, ऐसा करो तो आपको याद रहेगा जल्दी। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, है ना। अब इसका बनाएंगे हम। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। दे क्या है, सब्जेक्ट है। शुड गिव क्या है, ये है वर्ब, और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट है। आप देखो कैसे बनेगा इसका। देयर, देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंसेस हो जाएगा बेटा, ठीक कर लेना इसको, परफॉर्मेंसेस, है ना। शुड, शुड का शुड ही रहेगा, शुड, पर एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब इसमें बी लगेगा। मैंने अभी यूज़ करते समय बताया था बी, है ना। देयर परफॉर्मेंस शुड बी गिवन, है ना, बाय देम। अब एक बात रखना, याद रखना कि ये सिचुएशनल है। बाय देम इज सिचुएशनल। अगर वहाँ वो जो देम बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं तो लगाओ, नहीं तो आप मत लगाओ। सेंटेंस आपका यही फिनिश हो गया। देयर परफॉर्मेंस शुड बी गिवन, ख़त्म। बाय देम ज़रूरी नहीं, पर अगर वो जो देम पीपल है जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हो, देन ओनली यू कैन पुट बाय देम, ठीक है। ऐसा होता है। एक लेट का सेंटेंस बता देती हूँ। लेट कब होते हैं, अब वो बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं अभी सिर्फ आपको एक नाम बता रही हूँ। इम्परेटिव सेंटेंसेस, है ना। इम्परेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये है कि इसमें सब्जेक्ट, नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, पर इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है ना। वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना। तो वर्ब क्या है इसमें और ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है। हर सेंटेंस के सब्जेक्ट में यू आता है। इंपरेटिव सेंटेंस के हर सेंटेंस में स्टार्ट होता है यू से, और यू कॉमन है, इसलिए उसको इम्प्लाइड सब्जेक्ट कहते हैं। और इम्प्लाइड सब्जेक्ट नोट हम नहीं करते। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड सब्जेक्ट, और इम्प्लाइड सब्जेक्ट क्या है, इम्प्लाइड सब्जेक्ट है यू। तो यू कॉमन है हर इसमें, तो इसलिए नहीं लिखते। तो जैसे एग्जाम्पल है क्लोज द डोर, है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, और ये है ऑब्जेक्ट, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो इसमें भी हमने क्या देखा, ये है वर्ब, सॉरी, ये है वर्ब, और ये है यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टार्ट द जर्नी, राइट। तो आपने क्या देखा, सब में वर्ब पहले है और ये ऑब्जेक्ट है। इनके पैसिवाइजेशन कैसे होंगे, ये पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, क्लोज द डोर। तो इन सेंटेंसेस में इम्परेटिव में लेट लगाया जाता है ना। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल है क्लोज द डोर, एग्जाम्पल है क्लोज द डोर, है ना। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट द डोर। आप कर वो ही रहे हो, डोर को आप पहले लेके आए हो यहाँ पर उसके पहले यहाँ लेट लगा दिया। और इसमें साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना कि इसमें यहाँ पे लगेगा बी, लेट द डोर बी क्लोज्ड। वही चीज़ है, आपने थर्ड फॉर्म ही लिया इसका, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमने लेट लगा दिया, लेट द डोर बी क्लोज्ड। मैंने कहा प्लीज़, प्लीज़ क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो,
अगर सेंटेंस ऐसा है तो इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा द विंडो, है ना, सॉरी, इसका सेंटेंस का ये क्या बनेगा, यहाँ पर लेट नहीं लगाएंगे, यहाँ रिक्वेस्ट है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे, ये फ्रेज लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, है ना, ये हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड ये फ्रेज आपको प्लीज़ वाले सेंटेंस में या काइंडली वाले सेंटेंस में लगाना ही है। फिर यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, और वो है टू। टू, ये टू लगाया और फिर ये पूरी कॉपी कर दिया हमने, टू क्लोज द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ फिर से नहीं लगाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, ऐसा। मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, ऐसा बन जाएगा इसका, है ना। तो ऐसे सेंटेंस भी आते हैं, जैसे मैंने क्लास में कई बार बच्चों को डांट देते हैं ना हम लोग, तो हम कहते हैं गो गेट आउट इमीडिएटली, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, गेट आउट। मैं कई बार बोल देते हैं ना बच्चों को गेट आउट, तो मैं इसको अगर ऐसे नहीं बोलूँगी गेट आउट, वो सुन नहीं रहा है, तो मैं उसको पैसिव वॉइस में कैसे बोलूँगी, मैं बोलूँगी यू आर ऑर्डर्ड, या ऑर्डर्ड से ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रक्टेड, ये फ्रेज मैंने लगा दिया, यू आर इंस्ट्रक्टेड, और फिर टू लगा दिया यहाँ, टू और गेट का जी स्मॉल कर दिया, टू गेट आउट, ऐसे बनते हैं। इनको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि गेट आउट में भी वर्ब है डायरेक्ट, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस का भी रूल है। तो मैंने आपको कुछ अभी वॉइस बताए हैं, बहुत छोटे छोटे। अब मैं इसमें साथ में आपको नरेशन बहुत थोड़ा सा बता रही हूँ अभी, फिर नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी नरेशन, है ना। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, तो ये नरेशन का 1 मिनट पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है ना। अच्छा, नरेशन में क्या है, नरेशन मैंने क्या बताया, किसका नरेशन किया जाता है जनरली, एक्सीडेंट, इवेंट, है ना, कोई भी इवेंट, एक्सीडेंट और इंसिडेंट, इनका नरेशन किया जाता है। और ये जनरली ये किस में होते हैं, पास्ट टेंस में होते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बैक ले जाती हूँ, आपको इम्पॉर्टेंट है इसमें ये चीज़ें याद रखना कि इसमें कंजंक्शन यूज़ होता है ना, फिर इसमें टेंस यूज़ होता है ना, टेंस यूज़ होता है, और इसमें प्रोनाउन। कैसे, मैं 1-2 एग्जाम्पल बता रही हूँ आज तो, कि जैसे डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, है ना। अब वो भूल जाओ, वॉइस मैंने इसलिए जानबूझ के साथ में लिया। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन मतलब किसी की बात को रिपीट करना। अभी थोड़े से मोटे तौर पे आप इसको ऐसे समझो, कैसे, जैसे मैंने बोला, जैसे आपके फ्रेंड ने बोला, है ना, आपके फ्रेंड ने बोला शी सेड। अब ये पंक्चुएशंस का बहुत ध्यान रखना, कॉमा, क्योंकि उसके वर्ड्स में है तो इन्वर्टेड कॉमा आएगा, आई एम द CR ऑफ द क्लास। आई एम द CR, वो रिपीटेशन है, आई एम द CR, है ना, आई एम द CR मतलब मैं इसको फुल फॉर्म लिख देती हूँ, आई एम द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, है ना, आई एम द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे अब आपके माइंड में पिक्चर ये लगा जाना चाहिए, नरेशन की बात आती है तो ये इन्वर्टेड कॉमा, है ना, ये आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई किसी से कुछ कह रहा है, बस आप ये याद रखो, वो नरेशन है। तो कैसे अब इसको चेंज करना है, इसके चेंज में क्या होता है, इसके चेंज में आपको 3 चीज़ें याद रखना है। एक तो आपको कंजंक्शन याद रखना है, और सबसे कॉमन कंजंक्शन है दैट। किसी में हम इफ़ भी लगाते हैं और किसी में हम वेदर भी लगाते हैं, है ना। तो मैं अभी आपको दैट वाले बताती हूँ,
दूसरी बात, आपको इसमें प्रोनाउन बहुत ज़्यादा ध्यान से, मैंने प्रोनाउन का एक वो बनाया है वीडियो, आप देख लेना, आपको मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मिल जाएगी। प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रोनाउन, मैं अभी रिकॉल करवा देती हूँ आपको। और तीसरा इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्ब का फॉर्म, है ना, वर्ब फॉर्म आपको बहुत ध्यान से चेंज करना है, वर्ब का फॉर्म। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने कहा, शी सेड आई एम द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो आपने कहा उसको चेंज कैसे करोगे, शी सेड, है ना। अब वो जो कॉमा था इसको हटा दोगे, इसको आपने उसको ये इसको डिलीट कर दिया, आपने लिखा शी सेड और यहाँ लगा दिया आपने दैट, ये कंजंक्शन इम्पॉर्टेंट है, शी सेड दैट। अब शी, आई की जगह शी, उसने कहा कि वो, तो फिर वापस से आई की जगह यहाँ शी आ गया, शी आई एम उस समय बोला था, पर वह ये मैंने बोला ना वर्ब का फॉर्म, शी वॉज क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा बनेगा। सब हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा सब कुछ हट जाएगा। जैसे मैंने बोला कि विराट कोहली सेड वी विल विन द मैच, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, चलो, विराट सेड, विराट सेड, है ना, वी विल विन द मैच, ठीक है। अब एक बात इसमें ध्यान देना कि विराट ने कहा तो कल था, परसों था, 2 दिन पहले कहा, लेकिन क्या कहा विल सॉरी, विल मतलब कि करेंगे उसको, है ना। तो अब यहाँ चेंज क्या क्या आएगा, एक तो विराट कौन है, मेल मेंबर है और थर्ड पर्सन है, तो विराट की जगह में आपको जो चेंज करना है वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और बाकी सेम रहेगा। कैसे बनेगा इसका, विराट सेड, ये सब सेड के कारण चेंज हो रहा है, सेड, क्योंकि ये जो ये पार्ट है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्ट कर रहा है, कौन रिपोर्ट कर रहा है, विराट रिपोर्ट कर रहा है, विराट सेड दैट, है ना। अब विराट कौन है, थर्ड पर्सन मेल है, तो ही, वी है ना, सॉरी वी विल विन द मैच, है ना। तो विराट ऐसा हो जाएगा, विराट सेड, है ना, दैट दे, वी की जगह क्या हो गया, दे विल, तो वुड हो जाएगा विल का, दे वुड विन द मैच, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया। चलो एक आधी और देखते हैं। एक ऐसा वाला सेंटेंस देखो, देखो, शी आज मी, है ना, शी आज नहीं, शी आज नहीं, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, अब कॉमा, व्हाट इज योर नेम, योर नेम, इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें कुछ चीज़ें मन से लगानी होती हैं। तो आपने देखा कि एक तो सेड टू मी, है ना, ठीक है, तो वो मुझसे पूछ रही है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आज, टू नहीं लगाना कभी भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में टू रिमूव हो जाता है, तो क्या है, क्वेश्चन कर रही है वो, तो आपने बोला शी आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, कितने सारे चेंज आए इसमें, देखो, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड, यहाँ पर हो जाएगा आस्क्ड मी, व्हाट तो रह गई, वॉज, है ना, इस का क्या हो जाएगा, वॉज, योर का हो जाएगा माय नेम, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हाँ सॉरी, सेंटेंस बनेगा शी आस्क्ड मी, अच्छा इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं लगेगा, डायरेक्ट, व्हाट शी आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, है ना, ऐसा, और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, बस ऐसा बनेगा, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है ना, तो व्हाट वाज माय नेम, ठीक है। एक और देख लेते हैं,
जैसे कि मैंने किसी ने कहा सुनीता विलियम्स, है ना, अभी सुनीता विलियम्स हैज़ कम बैक, तो सुनीता विलियम्स, सुनीता में विलियम्स समझ जाना, ये विलियम्स said the earth is really beautiful, सपोज, है ना, तो the earth is really beautiful, really beautiful, है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हुआ। अब ये तो है कि ये बात तो है कि अर्थ इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, तो वो अर्थ वॉज नहीं हो जाएगा, अर्थ इज ही रहेगा। तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, सुनीता विलियम्स सेड, है ना, यहाँ तक तो है, फिर ये दैट हो जाएगा। क्या रिपोर्ट करिए वो, दैट द, अब ये द का टी स्मॉल हो जाएगा, द अर्थ इज ब्यूटीफुल। हमने इस को वॉज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ट्रूथ है, ट्रूथ कभी चेंज नहीं होगा, द अर्थ इज ब्यूटीफुल, राइट। लास्ट सेंटेंस एक और बता रही हूँ, कहते कि गैलीलियो सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, तो गैलीलियो सेड, उन्होंने कहा था कि द अर्थ, ये कैपिटल आएगा बेटा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं, इसमें मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कैसे चेंज करेंगे। गैलीलियो सेट तो सेम ही रहेगा, ये ये हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा जो है ये हट जाएगा, द स्मॉल हो जाएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये भी फैक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो, है ना, गैलीलियो सेड दैट, यहाँ तक तो आपने कंजंक्शन तो लगाया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सेम। क्यों, फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होते हैं, याद रखना, फैक्ट्स को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें भी हैं जिसको आपको चेंज करना है, पर इसमें इम्पॉर्टेंट, जैसे इफ़ वाला एक और बता देते हो, हमने अभी तक दैट वाला कंजंक्शन के देखे, इफ़ का कैसा हो जाएगा, जैसे सेंटेंस, अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ और वेदर में आपको एक कि क्वेश्चन अगर है, क्वेश्चन किस किस से बनते, क्वेश्चंस बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। WH वर्ड्स को कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव, है ना, और हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस को हम कहते हैं यस नो। मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, यस नो बोलते हैं उनको, है ना। तो यस, अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम इफ़ लगाते हैं, पर अगर क्वेश्चन WH, मतलब 9 WH होते हैं, कौन कौन से, वाई, वॉट, वेयर, विच, है ना, हु, हुज, हुम, ऐसे 9 होते हैं। अगर WH वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसमें हम इफ़ लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, मान लो माय मदर said to me, my mother said to me, are you coming with me, है ना, ये ऐसा, माई मदर सेट टू मी, आर यू कमिंग विद मी। तो यहाँ पर अब सेट टू मी का क्या हो जाएगा, माई मदर, यहाँ पे हो जाएगा माई मदर आस्क्ड, टू कभी नहीं लगाना, बार बार बोल रही, आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज कमिंग विद हर। बहुत सारे चेंजेस है, सब पलटता जाता है, कैसे,
my mother asked me if, ये हेल्पिंग आपने ये कंजंक्शन लगाया if, अब you का हो जाएगा I, है ना, आर यू कमिंग विथ, इफ आई वॉज, आर यू का, आर का यू, आर का इसमें वॉज हो जाएगा क्योंकि आई के एम का आई एम कमिंग है ना, तो एम का वॉज हो जाता, तो इफ़ आई वॉज कमिंग, इफ़ आई वॉज गोइंग, है ना, इफ़ आई वॉज गोइंग, आर यू कमिंग विथ मी, इफ़ आई वॉज गोइंग विद, और मी का क्या हो जाएगा, हर, है ना, और कोई क्वेश्चन में इफ़ आई वॉज गोइंग विद हर, ऐसा हो जाएगा। तो ये नरेशन है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द वॉइस इज़ डिफरेंट, वेयर वी हैव सीन दैट एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, समटाइम डूअर इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, कभी काम इम्पॉर्टेंट होता है, कभी पर्सन इम्पॉर्टेंट होता है। और इसको कैसे वॉइस में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जैसे मान लीजिए मुझे मेरा सीनियर बता रहा है कि मैम 2 दिन बाद आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, लेकिन उसने नहीं बताया और वो भूल गया और मुझे नहीं पता था और वो डेडलाइन निकल गई, तो मैं क्या बोलूँगी कि सॉरी आई वॉज नॉट टोल्ड, है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि सॉरी आपने यू डिडंट टेल मी, वो उससे अच्छा है मैं पैसे वॉइस यूज़ करूँगी, सॉरी आई वॉज नॉट टोल्ड, या सॉरी आई वॉज नॉट इंस्ट्रक्टेड, और सॉरी आई वॉज नॉट अवेयर, अवेयर तो अलग बात हो गई, सॉरी आई वॉज नॉट इंटीमेटेड, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, है ना, ये सारे सेंटेंसेस यूज़ करूँगी। इसका मतलब ही है कि आपने नहीं बताया, पर मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगी, बाय यू बोलना ही नहीं है, बस आई वॉज नॉट इन्फॉर्म, मुझे नहीं बताया गया। ये पैसिव वॉइस की ब्यूटी होती है ना। तो मैंने बोला कि येस यू वर टोल्ड यस्टरडे, कल आपसे कल कहा गया था, तो यू वर टोल्ड, तो कहा जाता है, कहा गया, ये वाली जो लैंग्वेज है, जैसे कि अनाउंसमेंट्स होते हैं, नोटिस होते हैं, तो कहते हैं ना कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, आर इन्फॉर्म्ड मतलब को सूचित किया जाता है, वो वाली जो लैंग्वेज है वो पैसिव वॉइस है ना। तो ये तो एक अलग नोट था। फिर हमने डिस्कस किया वॉइस नरेशन। नरेशन में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा। डायरेक्ट मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल के साथ वाइंड अप करूँगी, आपकी मम्मी को मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला कि प्लीज़ टेल टू योर डॉटर दैट असाइनमेंट्स विल नॉट बी सबमिटेड आफ्टर द डेडलाइन। अब या तो मैंने उनको इस तरह से बोल दिया, या मैंने बोला आई विल नॉट एक्सेप्ट असाइनमेंट्स आफ्टर द डेडलाइन। तो जब आप घर पहुँचे तो आपकी मम्मी ने आपको बताया कि तेरी टीचर का फ़ोन आया था और वो कह रही थी आई विल नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट आफ्टर द डेडलाइन, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि आई विल नॉट एक्सेप्ट असाइनमेंट्स आफ्टर द डेडलाइन को मेरी बात को एज इट इज़ मम्मी ने रिपीट किया। तो उन्होंने कहा योर टीचर सेड आई विल नॉट एक्सेप्ट असाइनमेंट आफ्टर द डेडलाइन, मेरी बात एज इट इज़ की, तो योर टीचर सेड दैट, ऐसा हो जाएगा बस, बाकी मेरी बात। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि सॉरी पहले तो ये बोला कि योर टीचर सेड आई विल नॉट एक्सेप्ट असाइनमेंट आफ्टर द डेडलाइन, तो मेरी बात डायरेक्ट स्पीच। अब उन्होंने मेरी बात को सेम, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए लेकिन अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके बोला, तो ऐसा बोलेंगी आपकी मम्मी। आपसे जो नरेट कर रही है आपको वो ये कह रही हैं कि योर टीचर सेड दैट, और जैसे ही दैट लगाया मतलब मेरी बात को अपने वर्ड्स में चेंज करके, दैट शी विल, आई नहीं शी, पहले तो उन्होंने कहा मैं सबमिट नहीं करूँ, उन्होंने कहा वो सबमिट नहीं करेंगी, तो कैसे, शी विल नॉट एक्सेप्ट असाइनमेंट्स आफ्टर द डेडलाइन, ऐसा इसको कहते हैं नरेशन। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत you must have got something, but you are most welcome to ask question, and please send me your question in your comment box. Okay, thank you so much. God bless.